تعلیم کی دنیا سے بریکنگ ڈے آپ کو بچوں کی موج مستیاں ختم، حکومت کا پیر سے اسکول کھولنے کا اعلان، 2 اگست سے تمام تعلیمی ادارے کھلیں گے۔ صوبائی وزیر مراد راس نے ٹویٹ کر دیا، ٹویٹ میں کہا کہ 50% حاضری کے ساتھ ایک دن کلاس ہوگی جبکہ دوسرے دن چھٹی ہوگی اور کرونا SOPs پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیر سے اسکول کھلنے جا رہے ہیں، 2 اگست سے تمام تعلیمی ادارے اب کھل جائیں گے۔ صوبائی وزیر مراد راس نے ٹویٹ کر دیا ہے، ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ 50% حاضری کے ساتھ ایک دن کلاس ہوگی جبکہ دوسرے دن چھٹی ہوگی اور کرونا SOPs کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا۔ رحیم یار خان میں گھر کی دہلیز پر کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع، مسلم بازار، صدر بازار، لنڈا بازار، قاضی بازار میں ویکسینیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کا رحیم یار خان میں آغاز کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی ٹیم نے بازار میں شہریوں کو ویکسین لگائی۔ مسلم بازار، صدر بازار، لنڈا بازار، قاضی بازار میں ویکسین کا عمل مکمل کیا گیا۔ صدر انجمن تاجران مسلم بازار کا کہنا تھا، تاجروں کو ویکسین لگوانے کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ وبا سے بچا جا سکے۔ 10 بجے سے ویکسین دکاندار حضرات کو اور دکاندار حضرات کے ساتھ ساتھ ادھر محلے گلی میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے بھی، اور لیڈیز کا بھی بہت جمع غفیر آیا ہوا ہے، کچھ کی لگ گئی ہے، باقی کی لگوا رہے ہیں۔ لوگ بڑی خوشی سے اور بڑے مطمئن ہیں کورونا ویکسین کروا کے، کیونکہ یہ ایک حفاظتی ویکسین ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کو لگوانا چاہیے۔ تو ہم نے خود بھی کورونا ویکسین لگوائی ہے۔ کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین کا عمل مکمل کرنا ہر شہری کا قومی فرض ہے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق روحی، رحیم یار خان۔ وزیر اعظم کے شہر میاں والی میں تعلیم کی ہوگی فراوانی، حکومت نے 1 ارب 82 کروڑ کی لاگت سے ایجوکیشن کے شعبے میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے۔ میاں والی میں 1 کروڑ 82 لاکھ روپے کی لاگت سے ایجوکیشن کے شعبہ میں ترقیاتی منصوبوں کو شروع کرنے کی حکومت پنجاب نے اجازت دے دی۔ منصوبہ جات کے آغاز کے لیے ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اداروں کے سربراہان کو جملہ پروسیس جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ رواں مالی سال کے دوران 54 کروڑ روپے کی لاگت سے داؤد خیل، موسی خیل اور بن حافظ جی میں بوائز ڈگری کالج تعمیر ہوں گے۔ اسی طرح 33 کروڑ روپے کی لاگت سے کمر مشانی، کالا باغ میں بوائز ڈگری کالج کا قیام ممکن ہوگا، جبکہ 15 کروڑ روپے کی لاگت سے ہرنولی گرلز ڈگری کالج تعمیر کیا جائے گا۔ تحصیل میاں والی میں نئے پرائمری ایلیمنٹری اسکولوں کے قیام اور اپ گریڈیشن پر 25 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ قیام کے لیے 11 کروڑ 82 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں پر شہر اور اس کے اسکولز کی حالت اب بہتر ہوگی۔ مخدوش کلاس روم گرا کر نئے بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا، 17 کروڑ کے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسکولوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے پرانے کلاس روم گرا کر نئے بنائے جائیں گے۔ سہولیات بہتر بنانے کے لیے 17 کروڑ روپے کے فنڈز دیے جائیں گے۔ 17 کروڑ روپے کی لاگت سے ہمارے پاس بہاولپور سٹی اور بہاولپور کی جتنی تحصیلیں ہیں اس میں ہیلتھ کی فیسلٹیز کے لیے اور سکولز کی فیسلٹیز کے لیے مسنگ فیسلٹیز میں شامل۔ نوابوں کے شہر کو خوبصورت بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے PHA کو 1.5 کروڑ روپے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ 1.5 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کے تحت یہاں پہ مختلف چوکس کی تزئین و آرائش کی جائے گی اور خوبصورتی کا یہ کام انشاءاللہ تعالی جاری کیا جائے گا۔ بہاولپور کے عوامی حلقوں نے اسکولوں اور شہر کی بہتری کے لیے فنڈز کے اجرا کو خوب سراہا ہے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ پاکستان میں واسا کی نااہلی، سیوریج مسائل بڑھ گئے، شہر میں ایک کے بعد ایک گراؤنڈ فیلئر، شہر کی 1100 کلومیٹر تک سیوریج لائنز پوسیدہ قرار، جبکہ کارڈیالوجی اسپتال عبدالی روڈ پر بھی گڑھا پڑ چکا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ خبردار ہوشیار، شہر اولیا کی سڑکیں ہائی رسک پر موجود، کبھی بھی کہیں بھی گڑھا پڑ سکتا ہے۔ 1100 کلومیٹر کی سیوریج لائنز بوسیدہ قرار دے دی گئی، جس کی تبدیلی کے لیے اربوں روپے درکار ہیں۔ تاہم واسا کی جانب سے 148 کلومیٹر بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ MDA روڈ پر موجود گراؤنڈ فیلئر پر بھی کام کیا جا رہا ہے، جہاں 2 روز قبل 10 فٹ گہرا گڑھا ہوا تھا۔ یہ مصروف روڈ ہے، اس کے اوپر تو کئی حادثات ہو سکتے تھے۔ ابھی اس وقت جب یہ گڑھا ہوا ہے تو اس وقت میں یہیں سے گزرا تھا، میرے پیچھے موٹر سائیکل والا تھا، وہ گزرا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ گڑھا پڑا ہے۔ دوسری جانب کارڈیالوجی ہسپتال عبدالی روڈ پر بھی گراؤنڈ فیلئر، 5 فٹ سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے یہ روڈ بنایا گیا، یہ حالات ہیں، یہ مین سیکٹریٹ والا روڈ ہے، ساتھ ہی جو ہے نا ہمارا جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ ہے،
और 2 हफ्ते पहले इन्होंने जो है ना कोई सफाई की है ना कुछ किया है, आए हैं और रातों रात ये रोड बना के चले गए और नतीजा अब आप लोगों के सामने है। अभी भी सेक्रेटरीट के रोड का ये हालात है, तो देखेंगे बाकी पंजाब के और बाकी पाकिस्तान के क्या हालात हैं। शहरियों ने इंतजामिया से ग्राउंड फेलियर का मसला हल करने का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। पुरानी बुसीदा लाइनों पर नए रोड की मुरम्मत के बाद इस तरह के वाकयात का होना यकीन इंतजामिया की नाअहली का वाज़िया सबूत है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इस बात का नोटिस ले कि आखिर पुरानी लाइनों पर नए रोड बनाकर करोड़ों रुपए का फंड क्यों जाया किया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। दूसरी जानिब मियांवाली की तहसील ईसा खेल में नदी नाले बिफर गए। बारिशी पानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हल्का इंतखाब को टारगेट बना लिया। अताउल्लाह ईसा खेलवी के घर में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया, जबकि मुताबिक देहातों और पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। गलियां तालाब का मंजर पेश करें। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में तबाही मचाने के बाद आज बारिश के पानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हल्का इंतखाब को टारगेट बना लिया। पहाड़ी नदी नालों से आने वाला बारिशी पानी ईसा खेल शहर में दाखिल हो गया। मुतादिद देहातों और पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अक्सर इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है। महंगाई की बात करें तो तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफे को ब्रेक नहीं लग सकी। गरीब आदमी के लिए मकान बनाना मजीद मुश्किल हो गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे को ब्रेक ना लग सकी। रेत और मट्टी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। मट्टी की ट्राली 300 रुपए महंगी होकर 2200 से बढ़कर 2500 रुपए तक पहुंच गई है। शहरियों का कहना था कि रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, गरीब आदमी अपना घर कैसे बनाए। पहले 2700 रुपए की ट्राली मिल जाती थी भाईजान, अब 3000 रुपए की बोलते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, कैसे मकान बनाया जाए। दूसरी जानब रेत की ट्राली भी 300 रुपए महंगी होकर 2700 से 3000 रुपए तक पहुंच गई है। दुकानदारों का कहना था कि हर हफ्ते रेट्स में इजाफा हो रहा है, मजबूरन हमें भी कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं। 2 हफ्ते में फिर रेट बढ़ गया है 300 रुपए फी ट्राली। पहले 2200 था, 2500, 2700, अब 3000। तो मुतालबा यही है हुकूमत से कि रेट कम करे, हम भी आगे जो गाहक हैं उनको हम सहूलत दे सकें। शहरों ने हुकूमत से तामीराती मटेरियल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया ताकि गरीब आवाम अपना घर आसानी से बना सके। रेत और मट्टी की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए एक और बुरी खबर। मुल्तान में सस्ते स्टोर्स भी महंगे हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 17 रुपए महंगी, जबकि कीमत 68 से बढ़कर 85 रुपए कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 68 रुपए से बढ़कर 85 रुपए किलो हो गई। आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए से बढ़कर 950 रुपए का हो गया। कुकिंग ऑयल और घी 170 की बजाय 260 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। यही मुतालबा है पाकिस्तान की पूरी आवाम का, जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी हैं वो मुनासिब कीमत पे दस्तयाब होनी चाहिए, ताकि आवाम जो वैसे ही कोरोना की वजह से इस वक्त पिसे हुए हैं, लोग जो हैं वो माशी मुश्किलात का शिकार हैं, तो आवाम को हुकूमत को ये चाहिए कि उनको रिलीफ दे, बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी मुनासिब कीमत पे मुहैया करे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए शहरियों का कहना है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी। यूटिलिटी स्टोर से गरीब जरूरियात जिंदगी की अशिया सब्सिडी पर खरीदते हैं, मगर अब वहाँ भी सब कुछ महंगा हो गया। आटा, चीनी और घी की कीमत बढ़ने से गरीब के घर फाकों की नौबत आ जाएगी। अभी भी हमारा बहुत ज्यादा फर्क है, इससे हमारी सेल पे या हमारे कस्टमर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाजार में घी 310 है, हमारा 260 हो गया है। बाजार में चीनी 110 है, हमारी चीनी 85 है। बाजार में आटा 1310 है, हमारा आटा 950 है। अभी हमारा बहुत डिफर है, इस वजह से अभी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा और अब हर चीज़ हर टाइम अवेल होगी। यूटिलिटी स्टोर मैनेजर राव इमरान कहते हैं कि मार्केट में रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते कि अशिया की कीमतें पहली वाली बरकरार रखी जाएं। अभी भी रेट मार्केट रेट से कम है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। किसानों की बात करें तो पहले से मसाइल का शिकार काश्तकारों के लिए भी एक बुरी खबर सामने आई है। डीएपी खाद की कीमत में 300 रुपए इजाफा कर दिया गया, जबकि बोरी 5700 से बढ़कर 6000 रुपए की हो चुकी है। नए पाकिस्तान में काश्तकारों के लिए बुरी खबर। डीएपी खाद एक माह में तीसरी बार महंगी हो गई। फी बोरी की कीमत 6000 रुपए तक पहुंच गई। काश्तकार कहते हैं खाद की कीमतों में मुसलसल इजाफा जुल्म के मुतरादिफ है। ऐसा खाद गिनना ऐसे गवार है, डीएपी है, यूरिया है, सब महंगे थी गए। कड़े पासे वञूं, जट बहुत परेशान है।
कोई मेहरबानी की वजह थोड़ा रेट डाउन की वजह। दूसरी जानिब डीलर्स कहते हैं कई कंपनियों ने डीएपी खाद की फराहमी भी रोक रखी है, जो रेट्स बढ़ने के बाद फराहम करेंगे। डीलर्स कहते हैं कि कंपनियों के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर खाद की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, इस वजह से कंपनियों ने इंपोर्ट भी कम कर ली है और काफ़ी ज़्यादा डीएपी का रेट तेज़ हो चुका है। इस टाइम 6000 के लगभग डीएपी की सेल मार्केट में हो रही है। रवामा खाद की कीमत पहले 5200 से 5500, फिर 5700 और अब 6000 रुपए तक पहुंच गई है। काश्तकारों ने हुकूमत से खाद सस्ती करने का मुतालबा किया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीसरी बार डीएपी की कीमतों में इजाफा होने के बाद अब उसकी कीमत 6000 रुपए तक पहुंच गई है और ये बात काश्तकार के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे और परेशान कुन है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरल्ला शारी, बहावलपुर। इंसानी अद्वियात के बाद लाइफ स्टॉक की अद्वियात भी पहुंच से बाहर। रहीम यार खान में एंटीबायोटिक, ग्लूकोज, विटामिन सी समेत तमाम अद्वियात महंगी हो चुकी हैं। दवाइयात की कीमतों में एक साल के दौरान 100 गुना इजाफा हो चुका है। जानवरों को गर्मी और हब्स के स्ट्रेस से निकालने के लिए ग्लूकोज और विटामिन सी इस्तेमाल कराया जाता है, मगर ग्लूकोज की फी किलो कीमत 170 से बढ़कर 300 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि विटामिन सी की कीमत 750 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए तक हो गई है। ये मौसम चल रहा है, जून जुलाई का हब्स का मौसम होता है। इसमें जानवर को स्ट्रेस में जाने की वजह होती है कि ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियली विटामिन सी और ग्लूकोज दिया जाता है। और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इस साल कीमतें 100% इंक्रीज कर गई हुई हैं। लाइक विटामिन सी जो था लास्ट ईयर एंड कंज्यूमर को 700-750 में प्रोवाइड होता था, जो इस साल बढ़ के 1300, 1400, 1500 रुपए जा चुका है। लाइफ स्टॉक की अदवायात की कीमत बढ़ने से किसान भी परेशान हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए। मुश्किलात बड़ी है, जड़ा पहले दवा सस्ते महंगे थी गए, परेशानी बढ़ वेंदी है। दवे घिनने नगरे को बुखार ये वो आखिरकार पैसा लावना पमदे, बड़े परेशानी है। बस दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। लिहाजा हुकूमत से हम अपील करते हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ दें। मेडिसिन इंसानी हो या जानवरों की, सब बहुत गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो। लाइफ स्टॉक एंटीबायोटिक भी 100% महंगी हो चुकी हैं। टाइलोसिन 100 ml की कीमत 430 रुपए से बढ़कर 800 रुपए हो गई, जबकि जेंटामाइसिन की कीमत 250 रुपए से बढ़कर 450 रुपए हो गई है। ब्रायलर की टाइफाइड के लिए इस्तेमाल होने वाली फ्लोरफिनिकॉल भी 100% महंगी हो चुकी है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं, तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं। पुर के तलबा सड़कों पर निकल आए। पहले यूनिवर्सिटी चौक और फिर डीसी ऑफिस चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालबा कर दिया। हम इस्लामी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और हमारी यूनिवर्सिटी टोटली ऑनलाइन क्लासेस हमें दे रही है। 4-5 इन्होंने फिजिकल लेक्चर दिए हैं हमें, ना कोई प्रॉपर नोट्स दिए हैं, ना कोई प्रॉपर इन्होंने हमें मतलब समझाया है कि हमने फिजिकल इम्तिहान लेने हैं, उसके अभ्यास तैयारी करें आप या ऑनलाइन लेने हैं। कोई इन्होंने नोटिस नहीं दिया। 4 लेक्चर के बेस पे हमसे फिजिकल इम्तिहान ले रहे हैं। जी प्रीपेयर तो इस वजह से होता है ना कि हमें कोई नोटिफिकेशन देते, हम उसी हिसाब से तैयारी करते। हमें अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया और डेट शीट वो रहा तो 1-2 करके दी जा रही है। हम ये मानते नहीं है। तलबा का कहना था कि उन्हें ज्यादा वक्त ऑनलाइन ही पढ़ाया गया है, जबकि इम्तिहानात फिजिकल लिए जा रहे हैं, जो उनके साथ नाइंसाफी है। पूरी क्लासेस ना होने की वजह से फिजिकल इम्तिहानात की तैयारी नहीं। मैं खुद लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरी खुद 4/4 CGPA चल रही है। मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह एहतजाज में आने का, ठीक है। तो सर इन्होंने हमें पढ़ाया ही ऑनलाइन है, फिजिकल ऑनलाइन पढ़ाया है और फिजिकल पेपर्स की हमसे डिमांड कर रहे हैं। सर इन्होंने हमें 9 चैप्टर 10 चैप्टर 4 लेक्चर्स के अंदर हमें ऑडियोज बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए कि इसमें से आपका पेपर आना है। हमने कहा सर डिमांड की आप लोगों से, जितना आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया है उसका आप लोग हमसे ऑनलाइन पेपर ले लें और जितना आप लोगों ने हमें फिजिकल पढ़ाया उसका हमसे फिजिकल पेपर ले लें। तर्जुमान इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर शहजाद अहमद खालिद का कहना था कि 2 माह फिजिकल क्लासेस हुई, इम्तिहानात की तैयारी के लिए बाकायदा वक्त भी दिया गया, इसलिए इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक फिजिकल ही होंगे। एहतजाज करने वाले तमाम तलबा का एक ही मुतालबा है कि अगर हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो हमारे पेपर्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरल्ला शारी, बहावलपुर। जनूबी पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। मजदूरों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हेल्प फाउंडेशन मैदान में आ गई। कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में 250 डेली वेजेस मजदूरों में हीट स्ट्रोक से बचाव की किट्स तकसीम की गई हैं।
जनूबी पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ गया। हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत बढ़ने लगा और मजदूरों के हीट स्ट्रोक का शिकार होने का भी खदशा बढ़ गया। ऐसे में हेल्थ फाउंडेशन मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मैदान में आ गई। हीट वेव के साथ हब्स भी इसमें इंक्लूड हो जाता है कि जब हब्स आ जाता है तो उसमें टेम्परेचर बेशक 41-42 रहता है, लेकिन उसमें जो आपकी फीलिंग्स हैं वो 50 को टच कर रही होती हैं। तो इसमें किट्स में हमारे पास इनको दे रहे हैं, जो ख़वातीन हैं इसमें जो मजदूरी कर रही हैं, सड़कों पर हैं, ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं लोग, जो रेडी वाले हैं उनको हमने टारगेट किया। कुछ माजूर हैं अफराद। कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद की गई तकरीब में कमिश्नर मुल्तान ने 250 से जायद मजदूरों में किट्स तकसीम की। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि हेल्थ फाउंडेशन जनूबी पंजाब में बेहतरीन काम कर रही है। दीगर समाजी तंजीमों को भी हेल्थ फाउंडेशन की तर्ज पर इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे मौसम में इस तरह के सेफ्टी जो कपड़े हैं, छतरी है और दीगर चीज़ें डेली वेजर्स को उनके डोर स्टेप पे जाके मुफ्त पहुँचाना, मैं समझता हूँ एक नेकी का काम तो ये है ही है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे जितने भी डेली वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो है, उनकी जिस्मानी हिफाजत, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और उनकी आउटपुट भी बेहतर होगी। सेफ्टी किट में छतरी, तौलिए, पानी की बोतल और दीगर हिफाजती सामान मौजूद था। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गोहर रहमान, मुल्तान के इलाके मोमिनाबाद में मुखालिफिन की रजा नामी शहरी के घर पर मुबैना फायरिंग हुई। मुलजिमान फरार, जबकि पुलिस थाना शाहरुखनी आलम ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान के इलाके मोमिनाबाद में मुखालिफिन की रजा नामी शहर के घर पर मुबैना फायरिंग हुई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रंजिश का मामला, मोमिनाबाद में मुसल्लह अफराद की घर पर फायरिंग, इलाके में खौफो हरास फैल गया। अली रजा नामी नौजवान का मुखालफिन से झगड़ा चल रहा था। चंद रोज कबल भी अली रजा को मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा किया, मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर छोड़ दिया। 1:30 बजे का टाइम होगा, अचानक से फायरिंग की आवाज़ आई है तो हम बाहर हैं, लेकिन दरवाज़ा खड़काया, नजायज़ दरवाज़ा खोला है, सारे भाग गए थे जो भी थे। हमने 15 किया, मौके पे पुलिस आई है, रात भी मौका चेक करके चले गए हैं, लेकिन सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी सुबह आए हैं, फिर मौका चेक करके चले गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। फायरिंग के बाद मकामी अफराद भी इकट्ठे हो गए। थाना शाहरुखनी आलम को इतला दी गई, मगर पुलिस की जानिब से ताहाल कार्रवाई नहीं की गई। हमने उन पर पर्चा भी कराया था, पहले इन्हें इसे और इसके भाई को वो अगवा करके लेके गए। पुलिस को सारा पता है, हमने उन पर पर्चा भी करवाया, फिर भी उन्होंने कहा भी आइंदा के बाद ऐसा कोई काम नहीं होगा। पुलिस थाना शाहरुखनी आलम के मुताबिक वाक़े की दरखास्त मौसूल हो चुकी है। छानबीन के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसल राना ने जिला रासनपुर में 4 अफराद के कत्ल का नोटिस ले लिया। डीपीओ को 72 घंटे में तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार करने की डेडलाइन दे दी है। आरपीओ फैसल राना का कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से किसी किस्म की सुस्ती या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जबकि मुतासरा खानदान को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। डीपीओ से सारे अमल की खुद निगरानी करेंगे। नासिर अब नवाबों का शहर बनेगा मजीद खूबसूरत। डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर कामरान लाशारी ने बहावलपुर का दौरा किया। कहते हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। बहावलपुर समेत 5 शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए मंसूबा शुरू कर दिया। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर कामरान खान लाशारी ने बहावलपुर का दौरा किया। चौक फुआरा और फरीद गेट समेत मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। कामरान लाशारी का कहना था कि हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों को दिलकश शहर बनाने के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। सराकी वसेब के 2 शहर मुल्तान और बहावलपुर इसमें शामिल हैं। बहावलपुर जिलाई और डिवीजनल इंतजामिया के साथ मिलकर तारीखी और सकाफती मकामात का तयन किया जाएगा। बहावलपुर ये विजिट जो है जी, ये मेरी ऑफिशियल विजिट है और एक हुकूमत का नया प्रोग्राम शुरू हुआ है दिलकश सिटीज़ के नाम से, और उसमें 4 जो हैं शहर ख़ास तौर पे उनका चुनाव हुआ है, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर, और उसमें मुरीद के भी साथ शामिल है। कामरान लाशारी ने सर्किट हाउस बहावलपुर में मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकात की और मनसूबे बारे बताया। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान जलील इमरान की क़यादत में रोड सेफ्टी आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया, जबकि 9 नंबर चुंगी पर रोड यूजर्स में फूल और हेलमेट्स तकसीम किए गए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हफ्ता रोड सेफ्टी आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का आगाज चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलजाई की क़यादत में किया गया। वाक़ का एहतमाम भी किया गया।
वाक में ट्रैफिक वार्डन, सिविल सोसाइटी के अरकान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ये मैं आपको पहले बताऊं कि अभी एक 8 दिन की मुहिम आगाही मुहिम चलाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जिसमें हम खास तौर पे पब्लिक को अवेयरनेस दे रहे हैं, हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। आगाही मुहिम के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलज़ाई ने मोटरसाइकिल सवारों में फूल और हेलमेट तकसीम किए। सीटीओ ने कहा, रोड यूजर्स को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही दे रहे हैं। दोनों चीजें साथ चलती हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलता। प्यार मोहब्बत के साथ साथ हम कानून पर अमल दरामद करने के लिए जो कानून हमें इजाजत देता है जुर्माने लगाने की, वो भी जरूर करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलज़ाई का कहना था, शहरियों को आगाही दी जा रही है, जबकि आगाही मुहिम और चालान साथ साथ चलेंगे। हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवार अब हो जाएं होशियार, क्योंकि एक हफ्ते की मुहिम के बाद अगर हेलमेट इस्तेमाल न किया तो अदा करना पड़ेगा भारी भरकम चालान। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में मैंगो ड्राई प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। पहला मैंगो ड्राई प्लांट यूनिवर्सिटी और आम के काश्तकारों के इश्तराक से बनाया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में मैंगो ड्राई प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। मैंगो ड्राई प्लांट से आम को खुश्क करके महफूज बनाया जा सकेगा और नित नए फूड आइटम बनाने में मदद मिलेगी। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि मैंगो ड्राई प्लांट से ग्रोअर्स भी मुस्तफिद होंगे। हमें अपने आम को बेहतर अंदाज में ट्रीट करने की जरूरत है। हमारा मैंगो जो है वो यूनिक है दुनिया में, उस जैसा और मैंगो कहीं नहीं है। उसकी हम उसको एज ए टेबल मैंगो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसकी डोमेस्टिक मार्केटिंग भी हो रही है, लेकिन सारा टेबल मैंगो जो है वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ शेल्फ लाइफ। इस मौके पर मैंगो ग्रोअर मोहम्मद तारिक का कहना था कि ड्राई मैंगो की एक्सपोर्ट से कई ममालिक लाखों रुपए का रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं। आम की प्रोडक्ट से काफी ज्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स को ऊपर ले जाना है आपने, अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व्स अपने मुल्क के बीफ अप करने हैं, तगड़े करने हैं और बनाना है, तो ये काम के बगैर कुछ वो फायदा नहीं है। तुलबा और तालबात का कहना था कि मैंगो ड्राई प्लांट से अमली तौर पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना।